Namaskar, I'm Deepak Misra and welcome to my YouTube channel named Aao Padhein. This is another video of The Wild Swan at Cool, composed by William Butler Yeats. In previous video, we read the poem and tried to understand also in Hindi. Today we will know the summary. If you have not watched the previous video, then watch it so that it will be easy to understand the poem. The link is given in description box. The Wild Swan at Cool. The Wild Swan, The Wild Swans at Cool is a poem by William Butler Yeats, 1865 to 1939. He was an Irish poet and one of the foremost figures of 20th century. In 1923, he was awarded the Nobel Prize for Literature. Now, come to the poem. The poet is a first person speaker wandered through autumn woods, observing a beautiful forest and meditating on bygone times. He arrives at the shore of a lake and observes that there are 59 swans swimming upon the reflection water. He remembers a time when 19 years ago he came to this lake and was watching the swans when suddenly they all flew away into the sky and scattered. Observing them now makes the speaker's heartache because he realizes that so much has changed since he first began to observe the swans 19 years ago. Things were better back then. Even the swan's wings seemed to be beat more lightly in the air. However, he observes those swans seems unaware of the passage of time. They remain together, going where they wish. He realizes that even when they fly away from him, or even when he no longer comes to see them, they will still be doing what they have always done, elsewhere for some other observer. They are testament to the fact that some things are eternal even in a rapidly changing transcendent universe. The poet is an observer, seeing through the lens of his own perception, writing in the first person. We find I in the poem. The swans are the main subjects and the most important symbols. They testify to nature's innate and indifference to the human world, loss, change, and history. They are evidence that some things in this world really do last forever. आइए एक बार और देख लेते हैं इस कविता के बारे में। यह कविता कवि विलियम बटलर येट्स द्वारा लिखी गई है, जो 1865 से 1939 यानी 1865 में उनका जन्म हुआ और निधन 1939 में हुआ। वह एक आयरिश पोइट थे और 20वीं शताब्दी के साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध थे। 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड सम्मानित किया गया, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब एक बार सारांश देख लेते हैं कविता का, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। कवि सबसे पहले देखते हैं, कवि खूबसूरत जंगल से होते हुए गुजरते समय को बहुत गहराई से समझना चाहता है। इसी क्रम में वह कूल झील तक पहुंचता है, जहां 59 हंस दिखते हैं। कवि पूरे दृश्य को फर्स्ट पर्सन के रूप में वर्णन करता है, यानी हर जगह वह मैं करता है, यानी मैं का प्रयोग होता है। कवि याद करता है कि 19 वर्ष पहले भी वह यहाँ आता था और हंसों को देखता था, लेकिन एक बार अचानक सभी आकाश में उड़ गए और तितर बितर हो गए। देखने के ही क्रम में जब वो देख रहे थे, पूरा देखते इससे पहले कि वो सभी उड़ गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए उसके हृदय में पीड़ा होने लगती है, क्योंकि वह महसूस करता है कि इन 19 वर्षों में
काफी कुछ बदल गया है। पहले के हालात कहीं ज्यादा अच्छे थे। उन दिनों हंस के पंखों की आवाज कहीं ज्यादा मधुर थी। आगे हम यह भी देखते हैं कि हंस बीतते हुए समय से अनजान है। मतलब कवि देखता है इस चीज को कि भले समय बीत रहा है लेकिन हंस उस बीतते हुए समय से अनजान है। वे अभी भी साथ रहते हैं अपने कॉम्पेनियन के साथ, तथा जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। वह यह भी मानता है कि जब हंस उड़ते हुए उससे दूर चल जाते हैं तभी वे वही कर रहे होते हैं जो हमेशा से करते रहे हैं। वे इस तथ्य के प्रमाण हैं कि कुछ चीजें शाश्वत हैं इस बदलते हुए ब्रह्मांड में भी। जो कुछ बदलता है, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन में भी। यहाँ कवि एक पर्यवेक्षक के रूप में है, मतलब देख रहा है, जो स्वयं की धारणा के माध्यम से सब दिखता है। हंस कविता के मुख्य विषय और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जो दुनिया के लिए इस प्रकृति के इस नियमों को की गवाही देते हैं। और ये हमें बताता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें वास्तव में हमेशा के लिए रहती हैं। तो यह था समरी द वाइल्ड स्वान्स एट कूल का। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। अब आगे हम कुछ शब्दों का मीनिंग देख लेते हैं। जैसे ट्वाइलाइट, इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं गोधूली बेला। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पूरा शाम भी ना होता, अस्त होता है, उस समय को हम गोधूली, वैसे संध्या बोलें, सांझ बोलें। एसेंड मतलब ऊपर चढ़ना। व्हीलिंग, व्हील मतलब पहिया होता है, तो पहिया के रूप में ही हवा में गोलाई में घूमना। क्लेमरस शोरगुल वाला, कोलाहलपूर्ण। सो पीड़ादायक। ट्रोड घूमना, ट्रेड गति। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।